आफ्टर कंप्लीट दिस सेशन मैं आप लोग को जो लिंक है रिकॉर्डिंग का वो मैं शेयर कर दूंगा। सो नाउ आई थिंक आप सभी के पीसी में मल्टीसिम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा। आई नो रोहन इज देयर एंड ही इंस्टॉलिंग द मल्टीसिम सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसीज। सो जितने भी कंप्यूटर्स हैं efficiently Rohan will finish that installation. So now let's start the multisim सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मल्टीसिम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद you have to come into the type here to search in your PC. You have to come type here to search and you have to search multisim. When you will search the multisim, so you will get NI multisim 14.3. Nitish, sorry to interrupt. Are you sharing some screen from your side? Pardon? Are you sharing some screen from your side, Yes, or sir. it's not visible for our? Rohan, you should share your entire screen, I think. Screen. Okay, again I'm going to share my entire screen. Yeah. Okay. Okay. Sure. You carry on. Okay. Now I think it's visible to all of you. Yeah, now it is. Yeah, Nitesh, it is visible. Okay. So okay. So now, so after the finish your installation, multisim installation, you have to come here. Type here to search on your computer. Then you have to search just you have to search multisim. So when you will search multisim, so you will get this option, NI multisim 14.3. Now you have to click on the NI multisim 14.3. So ये कुछ time लेगा. It will take few minutes to configure all the drivers, modules, and related dependencies. Okay, to execute or open the NI multisim software. I think now my screen is visible to all of you. So it is a working window of NI multisim software. You can say it is a getting started window, or working window, or workspace, whatever name you want to give, you can give the name. Okay. Now it is this complete entire window will help you to design your logic, to design your circuit, और डेवलप योर एल्गोरिदम एंड टेस्ट योर एल्गोरिदम। ये पूरा विंडो का आप यूज कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम, अपने सर्किट, अपने लॉजिक डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर दैट नाउ लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग अबाउट द मल्टीसिम सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन द टॉप ऑफ दिस यू कैन सी हियर इन दिस टॉप रिबन, यहाँ पर आपको मिलता है फाइल। जब आप इस फाइल में राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, जब आप इस फाइल में क्लिक करेंगे, सो यू विल get new, open, open sample, close all, save as, save all, these kind of option. If you want to open a new multisim workspace or work environment, okay, or working window, so for that you have to come here and you have to press the new. In place of doing all these things, you can press Control N. जैसे आप Control N प्रेस करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगा। Okay, now like this. Now you can see here, this one is design 1 and this one is design 2, and you will get the design here. You will get the information or name or uh, okay, or you can customize the design from here. Now you can see two design has been enabled in my PC, और मैं दोनों में से जिसको चाहूं मैं यूज कर सकता हूं। Okay, so right now we have two design 1 and design 2 in my PC. Now you can see here I am going to close this one, second design. Same way you can close or save individual design, individual multisim workspace. Now for the teaching and learning purpose, we no need to start teaching and learning purpose, हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने से पहले first we need to know about this environment and about the component. So as I mentioned, the first one is file, the second one is edit, then view, then you will come into the place. जब आप place में yes place, जब आप place में आएंगे, when you will come into the place, you will get this okay कंपोनेंट के जस्ट लेफ्ट में आपको दिखाई देगा Ctrl+W. When you will press Ctrl+W, so you will get your master database. You will get your component database.
Okay, you will get your component database. I will explain everything about this component database after a few minutes. Then when you will come into this place, you will get proofs. So आपको यहाँ पर कुछ different types से proofs मिलेंगे. Voltage proofs, current proofs, power proofs, differential proofs, voltage and current proofs. You can enable or you can use the proof, okay, from this platform. If you are अगर आप कोई एक सर्किट बना रहे हैं एंड सर्किट डेवलपमेंट के बीच में अगर आपको उस पर्टिकुलर लाइन का उस पर्टिकुलरली यस वायरिंग में वायरिंग से अगर आपको वोल्टेज या करंट देखना है तो आप इस प्रूफ का यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर मिलेगा. देन यू विल गेट जंक्शन. ओके, जंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए एंड देन यू विल गेट वायर. अगर आपको वायर लेके आना है तो आप इसको क्लिक करके आप वायर लेके आ सकते हैं या तो फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं. लेट्स सी, मैं एक वायर लेके आता हूँ. यहाँ पर एक वायर है. ओके, सॉरी, control plus shift plus W. This one is one wire. And let's come here and take one more wire. यहाँ पर एक और वायर लेके आते हैं. So now you can see here we have two wires. Now if I want to add this two wire or let's take one more wire. So आप इसको copy control C control V कर सकते हैं. Sorry, just a second. फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो. ओके, now you can see we have three wires. तो इन तीनों वायर्स को अगर मैं एक जंक्शन लेके आऊं तो यहाँ पर जंक्शन में ऐड कर सकता हूं easily. Okay, then you will get bus connectors. तो आपको ओपन पेज कनेक्टर, ग्लोबल कनेक्टर, ओके, हायरार्किकल कनेक्टर्स और बहुत सारे कनेक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे. अगर आप सर्किट एक वर्क स्पेस में या एक विंडो में कंपाइल नहीं हो पा रहा है या आप एक वर्क स्पेस या एक विंडोज में उसे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन यूज दिस कनेक्टर पिन. सपोज यू वांट टू वर्क ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म. आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई सर्किट डेवलप करना चाहते हैं और अपने यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप करेंगे उसको कंट्रोल सिस्टम एंड सिमुलेशन एल्गोरिथम पे कॉल करना चाहते हैं, देन आप NI LabVIEW को सिमुलेशन टूल किट्स यूज कर सकते हैं. और जब आप कोई सिमुलेशन टूल किट्स यूज करेंगे उस समय आपको LabVIEW को सिमुलेशन टर्मिनल्स चैनल को यहाँ ऑन करना पड़ेगा. सेम इफ यू हैव नाउ कम इन सिमुलेट में आपके पास रन बटन है, आपके पास पॉज है, स्टॉप है. यहाँ पर आपके पास ट्रांसफर है जहाँ पर से आप अल्टी बोर्ड में इसको ट्रांसफर करके PCB सर्किट भी डेवलप कर सकते हैं. नाउ अदर टूल्स आर हियर. इन दिस सिमुलेशन यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट्स का एक कंप्लीट सेटअप मिलेगा. इस दिस इंस्ट्रूमेंट के सेटअप में इन दिस सेटअप यू विल गेट मल्टीसिम, फंक्शन जनरेटर, वाट मीटर, ऑसिलोस्कोप, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप, बॉर्डर प्लॉट, फ्रीक्वेंसी काउंटर एंड अदर वेरियस हार्डवेयर और वेरियस इंस्ट्रूमेंट यू कैन select from this location. अगर आप मल्टीसिम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पे नॉर्मली ध्यान देंगे, so you will find a dotted background here. In this dotted, okay, just right side of this dotted background, you will get the instruments block. यहाँ पर आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ब्लॉक प्लेस्ड हैं और डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वन बाय वन. The first one was the DMM, the second one was the function generator, then watt meter, then oscilloscope, then 4 channel oscilloscope. सब आपको यहाँ पर राइट साइड में नॉर्मली अवेलेबल मिलेंगे जिसको आप यू कैन क्लिक एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. Okay. Now in this okay, leave the second ribbon. In the थर्ड रिबन में आपको जितने भी कंपोनेंट ब्लॉक्स हैं, जो भी कंपोनेंट ब्लॉक्स हैं, उस कंपोनेंट ब्लॉक्स को अलग अलग लेवल से अलग अलग ग्रुप्स आपको इस कंपोनेंट ब्लॉक्स में मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज फॉर द बेसिक ग्रुप. द फर्स्ट वन इज फॉर पावर ग्रुप, देन बेसिक ग्रुप, देन आपको डायोड का ग्रुप मिलेगा, फिर ट्रांजिस्टर का ग्रुप मिलेगा, उसके बाद आपको एनालॉग का ग्रुप मिलता है एंड TTL एंड अदर ग्रुप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. ये सब ग्रुप्स हैं क्या? व्हाट आर दिस ग्रुप्स? आप जब मल्टीसिम वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर कोई कंपोनेंट को लेके आना चाहते हैं, कोई कंपोनेंट
कोई रजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर, कैपेसिटर या कोई पावर सप्लाई, सो वो सभी आपको कंट्रोल प्लस W प्रेस करने के बाद जो डेटाबेस ओपन होगा उसमें मिलेगा। तो मल्टी सिम में यूजर की कोई एक्सेसिबिलिटी ज्यादा देने के लिए उस ग्रुप्स को, इन ग्रुप्स को, यहाँ पर जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया है, जिससे आप उसे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। If I am properly able to address all of you, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा आप उसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप सेशन के एंड में भी आप मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन। हेलो नीलेश सर, Yes, sir. कैन वी गो अहेड? Yeah, yes. Okay. So as I said, as I mentioned कि आप मल्टीसिम मल्टीसिम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट या मल्टीसिम वर्किंग इन्वायरमेंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च करके आपको NI मल्टीसिम सर्च करना पड़ेगा। जब आप NI मल्टीसिम सर्च करके डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा और कुछ मिनट भी ले सकता है, बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। ये आप जो भी टाइम लेगा उसके बाद आपके सामने ये वर्किंग इन्वायरमेंट ओपन होके आएगा। जब आपके सामने ये वर्किंग इन्वायरमेंट ओपन होके आता है तो उसके बाद आप यहाँ से अपने किसी भी न्यू डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, या आपके बनाए हुए डिजाइन को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ, एक छोटा सा सर्किट डेवलप करता हूँ, और सर्किट को जो भी सर्किट मैं डेवलप करूंगा उसे क्लोज करके दिखाता हूँ। एंड आफ्टर दैट वन बाय वन विल सी अदर थिंग्स लाइक कंपोनेंट विंडोज, ओके, कंपोनेंट विंडोज। एंड देन मैं आपको कंपोनेंट विंडो बताने के बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। नाउ सबसे पहले मैं एक फंक्शन जनरेटर लेके आता हूँ। ये मेरा एक फंक्शन जनरेटर है। इस फंक्शन जनरेटर में मेरे पास एक कॉमन है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और मेरा ये फंक्शन जनरेटर 3 टाइप के सिग्नल जनरेट कर सकता है: साइनसोइडल, साइनसोइडल, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑसिलोस्कोप है। लेट्स टेक द ऑसिलोस्कोप। मैं यहाँ से एक ऑसिलोस्कोप लेके आता हूँ। अब इस ऑसिलोस्कोप और फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट करता हूँ। टू मेक अ कनेक्शन आपको उसके नोड पे नोड पे क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द नोड ऑफ फंक्शन जनरेटर पॉजिटिव, सो ये एक आपको नेविगेशन देगा कि आपका वायर कुछ किस तरीके से डेवलप हो रहा है। अभी तक मेरा वायर कंप्लीटली डेवलप हुआ नहीं है, ये बस जस्ट एक नेविगेशन है। मैं इसको जब किसी भी टर्मिनल पे सही तरीके से प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वायर कनेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर कि मेरा पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने चैनल नंबर ए, ये मेरा फंक्शन जनरेटर है, ये मेरा ऑसिलोस्कोप है। इन दिस ऑसिलोस्कोप वी हैव 2 चैनल ए एंड बी, और ए पॉजिटिव यहाँ पर है, ए नेगेटिव यहाँ पर है, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव यहाँ पर है। मैंने फंक्शन जनरेटर के पॉजिटिव को इससे कनेक्ट किया है, और अब मैं कॉमन को लेके कनेक्ट करूंगा फंक्शन जनरेटर के चैनल नंबर ए के नेगेटिव से। अगर मैं इस कंडीशन में प्रोग्राम को रन करता हूं, ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक सिग्नल मिलना चाहिए। सो सिग्नल जो मिलेगा वो सिग्नल जनरेट कहाँ से होगा और सिग्नल दिखाई कैसे देगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। लुक एट हियर। आज जब आप फंक्शन जनरेटर लेके आते हैं तो उसके बाद जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फंक्शन जनरेटर का एक विंडो ओपन होकर आएगा, और ऑसिलोस्कोप का भी एक सेम विंडो यहाँ पर ओपन होकर आता है। नाउ इन दिस फंक्शन जनरेटर विंडो यू विल गेट वेरियस ऑप्शंस। यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज की है, एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पिक टू पिक है, ऑफसेट 0 है। ये एक साइनसोइडल वेव फॉर्म है। देन ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का फॉर्मेट होगा, एंड देन स्क्वायर है। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में अगर मैं ड्यूटी साइकिल को नियर अबाउट 1 कर दूंगा, 1 या 100, तो मुझे एक सॉटूथ सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिग्नल इज साइनसोइडल। साइनसोइडल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड जो मेरा है वो 10 वोल्ट पिक टू पिक है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग अ सिग्नल, बट इस सिग्नल, ओके, पर जो मुझे सिग्नल दिखाई दे रहा है ये प्रॉपरली
ओके, नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग वन सिग्नल, और जो यहाँ पर मुझे सिग्नल दिखाई दे रहा है, दिस सिग्नल इज ओके, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर साइन वेव सिग्नल, सो कैन आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 10 हर्ट्ज कर दिया। नाउ यू कैन इजली एबल टू सी द सिग्नल। अगर मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 100 करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमें एक प्रॉपर साइनसोइडल सिग्नल मिल रहा है, ओके, विद 100 हर्ट्ज। मुझे 100 हर्ट्ज का एक प्रॉपर साइनसोइडल सिग्नल मिल रहा है। एंड इन दिस ऑसिलोस्कोप यहाँ पर हमारा सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है। इस सिग्नल को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, इस सिग्नल को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। अगर आप इसे सेव बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये .txt फाइल में भी डेटा स्टोर करके दे देगा। डेटा जो स्टोर कर पाएंगे वो यहाँ पर जो भी सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है बस उतने ही डेटा को कैप्चर करके देगा, ना कि कोई हिस्ट्री का डेटा, ना ही ये कोई हिस्ट्री डेटा देगा, और ना ही ये कोई पास्ट डेटा, सॉरी फ्यूचर के डेटा को स्टोर करेगा। जो भी स्क्रीन में डेटा रहेगा उसी डेटा को ये स्टोर करके देगा। नाउ हियर यू कैन सी द चैनल नंबर ए इज ओनली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल चैनल नंबर ए ही लाइव है, इसीलिए हमें चैनल नंबर ए में ही डेटा 8 प्लस माइनस 8.315 वोल्ट पे मिल रहा है, ओके। और यहाँ पर जितना भी सेकंड मेरा इलेप्स हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। नाउ अब यहाँ पर आपको टाइम बेस मिलता है, टाइम बेस से आप अपने एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है वो पर डिवीजन 10 मिली सेकंड का है, और आप चैनल ए यहाँ से आप वाई एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रोग्राम। ओके, मैं प्रोग्राम को स्टॉप करने के बाद आपको ये वार्निंग दिखाता हूँ। आपके यहाँ पर वार्निंग पे यहाँ पर लिख रहा है कि अभी हमने जो प्रोग्राम किया है ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम ग्राउंडेड नहीं है, हमारा सिस्टम ग्राउंडेड नहीं है, इसीलिए मेरा ये प्रोग्राम ओके करेक्ट प्रोग्रामिंग या करेक्ट सर्किट डेवलपमेंट नहीं है। सो इसके लिए वी नीड टू राइट क्लिक एंड वी हैव टू कम हियर, कंट्रोल W। आपको कंट्रोल W के लिए राइट क्लिक एंड प्लेस कंपोनेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, या तो आप प्लेस में आके कंपोनेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एंड W प्रेस कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी मेथड आपको सबसे अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। नाउ व्हेन यू विल ओपन दिस कंपोनेंट, सो यू विल गेट अ डेटाबेस। यहाँ पर जो डेटाबेस सिलेक्टेड है दैट इज मास्टर डेटाबेस। यू विल गेट 3 काइंड ऑफ डेटाबेस, कॉर्पोरेट डेटाबेस, यूजर डेटाबेस एंड मास्टर डेटाबेस। तो मैं यहाँ पर जो मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है इसी में ही NI के द्वारा बनाए हुए सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ओके। सो यहाँ पर जो एक कंपोनेंट आपको मिल रहा है इसमें सबसे पहला है सोर्स, फिर बेसिक, डायोड, ट्रांजिस्टर, एनालॉग, TTL, CMOS एंड अदर्स, ओके। सो फर्स्ट वन इज सोर्स। जब आप सोर्स को क्लिक करते हैं सो मास्टर डेटाबेस में जिस ग्रुप को हमें टारगेट किया दैट इज सोर्स ग्रुप। सोर्स ग्रुप में फैमिलीज है, इसमें मैं पावर सोर्स फैमिली पे जब आऊंगा तो इस पावर सोर्स फैमिली में मुझे यहाँ पर एक ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड। नाउ टेक द ग्राउंड एंड ट्राई टू प्लेस हियर। आप जहां पर भी इस ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, ओके, वहीं पर ये अटैच हो जाएगा। और नाउ मेरा सर्किट पूरा हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी, और यहाँ पर भी मुझे कोई भी वार्निंग नहीं मिल रहा। अब मेरा प्रोग्राम एक परफेक्ट प्रोग्राम है और मैं इजिली सिग्नल जनरेट और सिग्नल को डिस्प्ले कर पा रहा हूँ। Okay, now you can see it is a sawtooth signal. It's my square signal. Stop the program. अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू सेव दिस प्रोग्राम सो कम हियर, कम इनटू द फाइल एंड प्रेस कंट्रोल S, और आप कंट्रोल S प्रेस कर सकते हैं, या आप सेव में आके इसे सेव कर सकते हैं। नो, मैं किसी प्रकार का सिमुलेशन का डेटा स्टोर नहीं करना चाहता हूँ। अभी जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था उस समय नियर अबाउट 1 MB से ज्यादा का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ था। आई डोंट वांट टू सेव, मैं उसे सेव नहीं करना चाहता। जस्ट आई वांट टू सेव माय डिजाइन। सो यहाँ पर मैं अपने
डॉक्यूमेंट के नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में एक सर्किट डिजाइन 14.3 है। इसके अंदर मैं अपना ये फर्स्ट प्रोग्राम डेमो प्रोग्राम और डेमो सर्किट सेव इट, मैंने अपने प्रोग्राम को प्रॉपर्ली यहाँ पर सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर द डिजाइन वन, जो नाम यहाँ पर दिख रहा है डिजाइन वन, वो भी चेंज हो चुका है यहाँ से। चलिए अब हम एक दूसरे प्रोग्राम पे दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं। ओपन अ ब्लैंक प्रोग्राम डिजाइन। अब देखिए डिजाइन वन फिर से यहाँ पर अपेयर हो चुका है, तो मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूँ। ओके, नाउ राइट क्लिक, प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू। जब आप कंट्रोल डब्ल्यू सॉरी नॉट जस्ट कंट्रोल डब्ल्यू, जब आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक कंपोनेंट डेटाबेस ओपन होके आता है। इस कंपोनेंट डेटाबेस में मास्टर्स डेटाबेस सॉरी इस डेटाबेस में आपको मिलता है मास्टर डेटाबेस, उसके बाद ग्रुप, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, यहाँ आपको मिलेगा उसके सिंबल्स कि आपका कंपोनेंट दिखता कैसा है, यहाँ पर आपको उसकी फंक्शंस के नाम मिलेंगे, और यहाँ पर अगर उसे किसी कंपनी ने डेवलप किया है तो उस कंपनी की मैन्युफैक्चरर आईडी मिलेगी। ओके, नाउ यहाँ पर मेरे पास एक एसी पावर सोर्स है, तो मैं उस एसी पावर सोर्स को लेता हूँ और प्रेस करता हूँ ओके। और यहाँ पर मेरे पास एक डीसी पावर सोर्स है, मैं उस डीसी पावर सोर्स को भी लेके आता हूँ। सो फॉर बोथ आई नीड अ ग्राउंड, मैं ग्राउंड को यहाँ पर प्लेस करता हूँ एंड टेक वन मोर ग्राउंड। जस्ट आई वांट टू मेजर द वोल्टेज ऑफ दिस एसी एंड डीसी पावर सोर्स। तो इसकी मेजरमेंट के लिए राइट क्लिक, कम हियर, टेक मल्टीसिम। मल्टीसिम लेने के बाद सॉरी टेक अ डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर लेके आने के बाद आप इसे प्लेस कीजिए। जब आप डिजिटल मल्टीमीटर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगा। यहाँ पर आप मल्टीमीटर से देख सकते हैं, यू कैन मेजर द एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड डीबी। और ये मेरा डीसी के लिए साइन है और ये मेरा वेरिएबल का साइन है। सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ कनेक्शन। ओके, नाउ यू कैन सी ये मेरा जो जो मेरा पावर सोर्स है ये 120 वोल्ट आरएमएस जनरेट कर रहा है 60 हर्ट्ज। और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ओके, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 हर्ट्ज है और जो कि मेरा ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर मुझे मिल रहा है ओके 120 की जगह 119.999 वोल्ट। अब मैं ग्राउंड को अगर इसमें कनेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ, ठीक है, ये एक प्रॉपर बेस्ड ऑन द नेटलिस्ट और स्पाइस कोड के हिसाब से अगर मैं कोई सर्किट डेवलप कर रहा हूँ सो मुझे हमेशा उसको एक ग्राउंड देना पड़ेगा। चलिए सेम प्रोग्राम मैं लिखने की कोशिश करता हूँ फॉर डीसी पावर सोर्स। नाउ टेक द डीसी पावर फॉर द डीसी पावर और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मेरा कनेक्शन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फिक्स 12 वोल्ट मिल रहा है और ऊपर वाले में 120 वोल्ट आपको मिल रहा है। अब किस तरीके से मैं अपने एसी और डीसी पावर सप्लाई के पावर को चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, वो हम चेक करेंगे। सो टू कॉन्फ़िगर इट आपको इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन यू विल डबल क्लिक आपके सामने एक विंडो ओपन होके आएगा, पॉपअप विंडो, जहां से आप अपने पावर सप्लाईज के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर द वोल्टेज 120 वोल्ट, मैं इसको जस्ट चेंज करता हूँ और 20 वोल्ट्स। एंड मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज मैं यूएस में रहता हूँ तो मैं 50 हर्ट्ज पे काम करता हूँ, 50 हर्ट्ज पे मैं काम कर रहा हूँ, तो सर यहाँ जनरेट होता है तो मैं 50 हर्ट्ज ही रखता हूँ और ओके। ना यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, इट्स राइट नाउ ये जो चेंज हुआ है
20 वोल्ट RMS एंड 50 हर्ट्ज। सेम मैं यहाँ पे इसे चेंज कर सकता हूँ 5 वोल्ट DC एंड ओके। आप इजिली रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजिली इनके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, इजिली इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। रन द प्रोग्राम। ठीक है, ओके। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस पे किसी एग्जांपल पे, नाउ राइट क्लिक, कम टू द प्लेस कंपोनेंट। मैं यहाँ पर ग्रुप की जगह मैं यहाँ पर ग्रुप में सोर्स के प्लेस में बेसिक में आता हूँ। इन दिस बेसिक यू विल गेट वेरियस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, okay, electrolyte capacitor, variable resistors, okay, variable resistors, then variable capacitor, variable inductors and potentiometers. So मैं यहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज का एक 10 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर लेता हूँ और मैं इस 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर को लेके आता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सॉरी, नाउ ये जो 10 किलोमीटर्स का सॉरी 10 किलो ओम्स का जो पोटेंशियोमीटर है मैंने इसे यहाँ पर प्लेस किया है। अब मैं इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके कंट्रोल R प्रेस कर सकता हूँ। जब मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा तो ये कंट्रोल R प्रेस करने से ये रोटेट हो जाएगा। ओके, ये रोटेट हो जाएगा। अब मैं इसको लेके यहाँ पर आता हूँ और दिस ओके डिलीट दिस वायर और मैं इसको ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ, आउटपुट को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑसिलोस्कोप लेके आता हूँ। इस ऑसिलोस्कोप को भी ऑसिलोस्कोप के इनपुट, ऑसिलोस्कोप का ए चैनल मेरे सिस्टम का इनपुट होगा। सॉरी, नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा सेलेक्ट ऑल, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ओके, जो मेरा ऑसिलोस्कोप का चैनल नंबर ए है, ऑसिलोस्कोप का चैनल नंबर ए, इससे मैं अपने इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करूंगा और ऑसिलोस्कोप के चैनल नंबर बी से मैं आउटपुट को कनेक्ट करना चाहता हूं। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ कनेक्शन। ओके, लाइक दिस। ओके, नाउ इन दोनों सिस्टम को इस सिस्टम के साथ एक कॉमन ग्राउंड में देता हूं। कॉमन ग्राउंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का सिस्टम कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। सो नाउ इस कॉमन ग्राउंड है। अब यहाँ से जो मेरा सिग्नल जनरेट होके जाएगा वो मेरा इनपुट सिग्नल ए चैनल पे दिखेगा और यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होके जाएगा वो मेरा आउटपुट चैनल आउटपुट सिग्नल होगा जो बी में दिखाई देगा। ओके, आई एम गोइंग टू सिमुलेट द प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको दोनों सिग्नल्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ओके, जैसे ही मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, सिग्नल जो है मेरा आउटपुट सिग्नल भी स्मॉल दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसको कम करता हूँ, सॉरी, एक्सिस ए। ओके, 10 वोल्ट पर डिवीजन एंड इट्स आल्सो अ 10 वोल्ट पर डिवीजन। दोनों सिग्नल में 10 वोल्ट पर डिवीजन मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। ओके, दोनों ही सेटअप में 10 वोल्ट पर डिवीजन, 10 वोल्ट पर डिवीजन फॉर एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो हर एक जो ये होगा ये 10 वोल्ट पर डिवीजन, मैं ये मान के इस प्रोग्राम को भी रन कर रहा हूँ। नाउ जैसे ही मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, सॉरी इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, मेरा आउटपुट सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने लगेगा। नाउ अभी हमें इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज दोनों सिग्नल का कलर सेम है, रेड। तो इसके लिए मैं आउटपुट सिग्नल के कलर को चेंज कर देता हूँ। तो कलर को चेंज करने के लिए
आप राइट क्लिक कर सकते हैं वायर पे, और वायर पे जब राइट क्लिक करेंगे सो यू विल गेट दिस सेगमेंट कलर, और सेगमेंट कलर को क्लिक करके आप चेंज करेंगे। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है इसलिए मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं प्रोग्राम को डबल क्लिक करके ओपन, सॉरी, ऑसिलोस्कोप को डबल क्लिक करके ओपन करता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं। तो जो ब्लू वन है वो मेरा आउटपुट है। अब आउटपुट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके सेम एग्जैक्ट हो जाएगा जितना मेरा इनपुट का था। नाउ 100% मेरा अभी रेजिस्टेंस है, तो मुझे 100% सिग्नल मिल रहा है, और मैं इजिली अपने वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने। ओके, आप अब यहाँ से भी इस डेटा को रीड कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा, वोल्टेज चेंज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नाउ अगर मैं चाहूँ तो इस प्रोग्राम को भी सेव कर सकता हूँ। सो लेट्स सेव इट। ओके, एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी पावर सोर्स, टेस्ट एंड डिस्प्ले, सेव इट। जस्ट सेकंड सर मैम। हेलो, एम ऑडिबल? Yes. हाँ यस। ओके, सो अब मैं एक न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट फिर से लेता हूँ। टेकन, सो टू गेट अ न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट you can just press control and press the OK create। मैं न्यू वाले को क्लोज करता हूँ, क्लोज इट नाउ। yep, okay, right click, come here. Now in this diode, in this diode segment you will get various kind of diode, like you will get this okay, let's take this diode। मैं इस डायोड को लेता हूँ और इस डायोड का से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाता हूँ। लेट्स कम हियर एंड टेक अ रजिस्टर्स। मैं एक 1 किलो ओम का यहाँ से रजिस्टर्स लेता हूँ। ओके, अब मैं इस रजिस्टर्स को रोटेट करूंगा, कंट्रोल आर, और मैं डायोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहूंगा। राइट क्लिक, कंट्रोल डब्ल्यू, कम हियर, सोर्स, एसी पावर, प्लेस हियर, ग्राउंड, प्लेस हियर। नाउ ओके, नाउ माय सर्किट इज रेडी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर, सॉरी, ऑसिलोस्कोप लेके आता हूँ। डबल क्लिक, and change the value 12 volt, sorry, let's 10 volt। okay,
Now you can see we are getting only the positive side of our signal. So आप इजिली अपने सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. आपकी अगर बुक्स में कोई भी सर्किट है जिसको आप सिमुलेट करके टेस्ट करना चाहते हैं, तो इजिली आप उस सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. बस आपको एक परफेक्ट या सॉरी नॉट परफेक्ट, जस्ट आपको एक ओवरव्यू आउटलाइन पता होना चाहिए कि सर्किट दिखेगा कैसा या सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं. नो मैटर्स की कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है, नो मैटर्स की 1 किलो ओम की जगह आप 1 मेगा ओम लगा रहे हैं, लेटर स्लोली आप उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं. हेलो रोहन. Yes, ओके, आर यू गेटिंग माय वॉइस? you can. ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं. मैं इस प्रोग्राम को भी यहाँ स्टोर सेव करता हूँ. नाउ राइट क्लिक, कम इन न्यू वी, क्रिएट, क्लोज. ओके, अब अगर मेरे पास सपोज मैं गेट पे बात करता हूँ. ओके, अगर आपको डायरेक्टली इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर फंक्शंस और गेट, सो आप यहाँ पर एंड सर्च कर सकते हैं. सो व्हेन यू विल सर्च एंड वेयर, यहाँ कंपोनेंट पे व्हेन यू विल सर्च एंड, सो आपको यहाँ पर ओके वन इनपुट Just सॉरी I टू have इनपुट one वन doubt. आउटपुट. Hello, Nitish. जस्ट यस Can सर. you do that earlier circuit, whatever you have shown, can you just convert it into this PCB? Okay, okay, so for that I am Huh? going to open the same program, Yeah. Uh, diode. Okay, for this diode, so to okay, so here before going to convert this circuit into the PCB, we need to know about the types of component here. This one. Okay, we cannot simulate the temperature. Okay, or we can sorry, we cannot convert this power supply into the PCB circuit board. It is okay, and we cannot okay convert this platform this instruments into the PCB circuit board. Why? Because this is a power supply, it is external platform, and it is instruments. We can transfer only these two component, diode and resistance, from this circuit design to the PCB. क्यों? Because it is a simulated, it is a virtual hardware. Okay, for this virtual hardware we don't have any footprint, okay, and for this hardware we also don't have any footprint and manufacturer ID, but we can get the footprint and manufacturer ID for these two hardwares. If you are getting a hardware with the proper name like diode I1BH62, it is a real hardware. But here the resistance R1, so the resistance R1, it is just a component without any, it's just a component without any manufacturer ID and footprint. Why? That's why it's coming black. So isko we can convert these two into the we can transfer these two component into the ulti board to create our PCB circuit. Okay, it is my virtual soft hardware, so we cannot transfer it, and power supply is also external, okay, entity for any circuit, so also we cannot transfer it. So now why it is blue? इसके ब्लू होने का रीजन ये है क्योंकि इसका एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरर आईडी और फुटप्रिंट अवेलेबल है, बट इसका एक मैन्युफैक्चरर आईडी और फुटप्रिंट अवेलेबल नहीं है. सो हम केवल और केवल उन्हीं कंपोनेंट्स को ही फ्रंट सॉरी अल्टी बोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर पीसीबी सर्किट जो ब्लू कलर में है.
तो हमें इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट डबल क्लिक एंड ओपन। जब आप इसे डबल क्लिक एंड ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा लेबल, डिस्प्ले, वैल्यू, फॉल्ट, पिन, वेरिएंट, यूजर फील्ड। तो यहाँ पर वैल्यू में आपको नीचे नीचे मिलेगा पैकेज, ओके, एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो ना ही मुझे यहाँ पर पैकेज मिल रहा है, ना ही मैन्युफैक्चरर आईडी। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, लुक एट हियर, सो यू विल गेट प्रॉपर, ओके, पैकेज और मैन्युफैक्चरर आईडी। इसका मैन्युफैक्चरर तोशिबा है, कंपनी है, इसका पैकेजिंग ये है। सेम मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। सो डबल क्लिक एंड ओपन। जब मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पैकेज जो दिख रहा है, डबल क्लिक एंड ओपन, सॉरी, जस्ट क्लिक एंड ओपन इट, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आएगा। नाउ आपको यहाँ पर देखना है कि यह आपके सिंबल में, आपके जो सिंबल है उसमें 2 पिंस हैं, 1 एंड 2, ओके, 1 एंड 2, ओके। आपके सामने जो सिंबल है उसमें 2 पिंस हैं, 1 एंड 2। सो हमें 2 टर्मिनल्स, मतलब कि 2 टर्मिनल्स वाला कोई एक इमेज या कोई एक फुटप्रिंट सर्च करना होगा। सो टू सर्च दैट फुटप्रिंट, सेलेक्ट फ्रॉम अ डेटाबेस। जब आप डेटाबेस में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ओके, मैन्युफैक्चरर आईडी। कुछ जेनरिक होंगे और कुछ कंपनी बेस्ड होंगे। जो पेटेंट वाला होगा वो कंपनी के नाम के साथ आएगा, जो ओपन होगा वो जेनरिक में आएगा। नाउ यहाँ पर उसकी पैकेजिंग है और यहाँ पर उसकी पिन है, यहाँ पर उसका पिन है, और पर्टिकुलर पिन को टच करने से उसको उसकी फुटप्रिंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ओके। सो वी नो इट इज नॉट अ फुटप्रिंट फॉर रेजिस्टेंस। तो हमें एक रेजिस्टेंस के लिए प्रॉपर सही फुटप्रिंट सर्च करना होगा। सो उससे पहले मैं पिन को क्लिक करता हूँ और इसे ऊपर से नीचे ड्रैग करता हूँ। नाउ यू कैन सी, ओके, मुझे अब जस्ट सेकेंड, ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स टेक दिस वन, नॉट दिस वन, कोई और होगा, ओके, लेट्स टेक दिस वन, ओके। सपोज this one is perfect footprint for our registers. I don't know, but just यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज दिस वन इज परफेक्ट फुटप्रिंट फॉर आवर रजिस्टर्स, ओके। देन सेलेक्ट दिस वन। आफ्टर द सिलेक्शन, press the OK button. Now you can see we are getting the package, mean manufacturer ID, we are getting the package and we are getting the manufacturer ID. Now press the OK button. Now you can see it has been converted into the blue color. After that, we need to save it first. Save. Delete this one. Save it again. Come here. Come into the transfer. Transfer में आने के बाद, I don't know Ultiboard is available or not in my PC. So you have to transfer it into the Ultiboard. जब आप Ultiboard में ट्रांसफर करेंगे तो ये अगेन आपको ये बोलेगा कि सेव करने के लिए। नाउ सेव इट, जस्ट सेकंड। नाउ यू कैन सी हियर सर, यहाँ पर मैंने जो भी कंपोनेंट लिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और ये मेरा नेटलिस्ट व्यूअर है, सॉरी, ये मेरा अल्टीबोर्ड प्लेटफॉर्म है। इसने वो जो साइज आपका पीसीबी सर्किट का साइज इसने बना के दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये आ गया मेरा कंपोनेंट्स, ओके। ये जो छोटा वाला है, द स्मॉल वन, आई थिंक इट इज D1. दिस D1 इज फॉर डायोड एंड दिस इज फॉर रेजिस्टेंस, ओके। इट्स फॉर डायोड एंड इट्स फॉर द रेजिस्टेंस। अब मैं कंट्रोल R करके इसे रोटेट भी कर सकता हूँ,
कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। ओके, कुछ इसी तरीके का कनेक्शन मैंने डेवलप किया था अपने मल्टीसिम में। ओके, सॉरी अगेन। Now come here, let's see how it will look like. So now you can see here, मुझे रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली, सॉरी डायोड प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, पर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा जैसे रेजिस्टेंस के थे। सो नाउ ये हिडन ट्रायल पे है और आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट पीसीबी सर्किट इंजीनियर, सो मैं कंप्लीटली मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। ओके, सो इन दिस वे यू कैन convert your PCB to the your normal circuit into the this for the PCB circuit development। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, you will get various resources and study So materials which online. Yes sir. which extension file I should need to like open it into the ITC? What will be the extension file for that? Like .dff or .any Okay, other extension. extension file? Yes. Okay, just a second. With that National Instruments circuit into the extension file security copy diode. Okay, ultibolt dot okay, the file type should the ultibolt.net file, ultibolt.net file। ओके, मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ। सेव एज, सॉरी कम हियर, सेव एज। ओके, सो नाउ ultibolt file dot evprj। Okay. So now I'm going to save this one. Save it. Okay. Control W. As I said, if you want to simulate the logic for the AND, और आपको यहाँ पर AND सर्च करने से नहीं मिल रहा है क्योंकि you're not able to search and you don't have time to search, so just press Control W, type here OR, so you will get OR operations, OR 2 input 1 output, OR 3 input 1 output, 4 input 1 output। ये हो गया OR। अब आप यहाँ पर अगर OR एक लेते हैं, अब OR के आउटपुट को मैं सीधा एक एलईडी या प्रोब दोनों में से जिसको जो मुझे अच्छा लगे मैं उसमें देख सकता हूँ। सो आई विल टेक अ PROV प्रोब, आई एम टेकिंग ब्लू प्रोब। इफ यू वांट सो यू कैन टेक अ एलईडी और उसके लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। सो एलईडी, आप एक ब्लू एलईडी लेकर उसकी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, सो कनेक्शन कैसा होगा, प्रोब का कनेक्शन कुछ ऐसे नॉर्मली, और एलईडी का कनेक्शन जो होगा, ओके, उसके साथ आई नीड वन ग्राउंड। अब अगर मैं यहाँ पर एक SPST स्विच लेता हूँ, कंट्रोल W, इफ आई विल सर्च हियर SPST, SPST सिंगल पोर्ट सिंगल थ्रो, सॉरी, ओके, सिंगल पोर्ट सिंगल थ्रो एंड सिंगल पोर्ट सिंगल थ्रो। Now come into the power, take a DC power source, change the power, take a ground, control and control B, ground, 9 volt. Okay, if I will run the program, so now you can see here, run, in the both the condition LED and probes are glowing. Okay, in the both the condition LED and these are glowing.
So now this program is not perfect. I need to change something in this program. मुझे कुछ ना कुछ change करना है. So what I have to change in this program? First, I need to take a resistance. तो चलिए थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करते हैं. कंट्रोल आर, come here, come into component, take a basic. आप एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ले सकते हैं, रोटेट इट 10 किलो ओम, टेन किलो ओम. Okay, perfect. Now run the program. Just a second. Space को दूर रखते हैं, space को भी दूर. Now, both the signal, okay, both are open. So now you can see here LED and probes are not glowing. If I will close any one, so it will glow. So आप easily यहाँ से आप okay, you can use this platform and you can easily use this platform to show how the digital okay the logic works. आप easily इसका use कर सकते हैं. You can use this multi-sim platform for your analog electronics lab, digital electronics lab. You can use this So only due to that. Yes, Nitish, sir. only due to that register it changes the circuit, right? Yes. Due to, If okay, it will remove the resistance. but still the logic behind it, I couldn't understand. Like what? Okay. Okay. The basic logic जो अभी तक मैंने study किया था, I am using this platform from long time when I was doing my BTech in NIT Raipur. So at that time मैंने directly SPST को power supply से connect करके मैंने कई बार program किया. And every time based on the my logic कि अगर मैं इसे 5 वोल्ट देता हूँ, अगर मैं इसे 5 वोल्ट देता हूँ तो तो मेरा ग्लो होना चाहिए. बट क्योंकि सर्किट कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा था तो मेरा सर्किट कभी भी तो वो यहाँ से पास हो जाता था, वो काउंट पे सर्किट कंप्लीट बना लेता था. तो यहाँ पर अब मेरा पावर का सर्किट क्लोज हो रहा है. तो इसीलिए जब मैंने इसको कई बार हिट एंड ट्रायल करते करते मैंने एक लंबा समय मुझे लगा एंड आफ्टर दैट आई फाउंड आउट दिस सॉल्यूशन एंड मेरा ये एंड लॉजिक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है. मैं भी वही लॉजिक सोच रहा था कि डायरेक्टली मैं 5 वोल्ट या 9 वोल्ट देता हूँ और मेरा सर्किट ग्लो होना चाहिए, पर वो नहीं हो पा रहा था. तो उसके बाद मैंने टाइमली स्टडी करते करते मुझे ये पता चला कि नहीं, मुझे सर्किट को कुछ ऐसे डेवलप करना पड़ेगा. And just can you just do it that PCB design for this circuit as well? Okay. So Yeah. Okay. So here I'm going to save it. Okay. और अब इस और के लिए convert it into the double click and open. Select. Okay, let's take this one. Okay. Generic, delete this one, copy and paste here. Also there, generic packaging. Okay. And LED diode will not come here. So edit package. No. Okay. यहाँ पर सर जो हम और ले रहे हैं सर. Yes, sir. Yes, sir.
सो यहाँ पर जो एक और ले रहे हैं इट्स लॉजिक, सो इसके जगह मुझे एक हम आईसी लेना पड़ेगा और आईसी लगाने पड़ेगी, यस यस यस। इसके लिए मुझे और का आईसी, अगर मैं आपके पास और गेट, ओके ओके आईसी फॉर और गेट, ओके और गेट 7432, let's check 7432. Seven four three two. Okay. A only. Cancel. Okay, sir. Now Yes, sir. let's check our logic is will work or not first. Okay. Now let's try to convert it. Hmm. Hmm. Just a second. Double click and open. A value. No, I cannot convert it because it is just a model. Hmm. Control save transfer alt board or okay. Sorry for the yes. Select all. Sorry. Okay. Right. Okay. It is my okay. LED. It's my diode. It is my SPST. दो R1 और R2 यहाँ पर है। ओके, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है। आपको इसको रोटेट वगैरह करके कंप्लीटली इससे सेटअप करना पड़ेगा हमें। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, सॉरी। दोनों ग्राउंडेड, दोनों ग्राउंडेड हैं। ओके, नो इशू। कंट्रोल आर। एक रेजिस्टेंस का ये कनेक्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस का ये कनेक्ट हो गया, सही है। दोनों नीचे होने चाहिए, ये भी नीचे होना चाहिए। ठीक है सर। सर इसको टाइम लगेगा। हेलो सर। हाँ it sir, will okay. it, it Okay, will okay, I can understand. Yeah, you it will can take go ahead with the next circuit, no issue. Yeah. ओके, इट विल टेक मोर टाइम। बस इसके बाद हमें इसको 3D में प्लॉट करके बस देखना है कि ये दिखेंगे कैसे। तो ये और एलईडी विल हियर, आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएंगे दोनों। इट योर एसपीएसटी सिंगल पोर्ट सिंगल थ्रू। इट इज एंड नाउ you can place your that IC 7432 here. Okay, sir. Okay. Okay. Now I am coming here. Let's take a new VI. Okay. Here I'm going to use. Okay. Right click, Control W. Here just search 741. Search 741 and take a here. Take here the 741. After that 1K.
Then So can you just instead of this circuit, can you go with a LabVIEW if you are willing to do that? Any LabVIEW. LabVIEW circuit? So it is a different platform, and that is also a completely different platform. LabVIEW and Okay, multi. Okay, okay, LabVIEW. okay. LabVIEW is a completely 100% different platform. It is a different platform. Here, the multisim is only for the Electronics. Okay, okay. electronics and I electrical circuit design. You Yeah, can use. because I have seen some features on your multi sim, so that's why I was a bit confused about whether do you have that No, no, features. no, no. So actually, it's a look. NI Multisim and NI LabVIEW both are developed by the National Instruments Nice, platform. near NI. Yes, Okay, yes. NI. Yeah. Okay, they NI has developed this multi-SIM platform for the industry purpose. Mostly, they have developed this platform for the industry application. That's why you will not get various इसमें ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर या बहुत सारे कंपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे जो कि ऑर्केड या दूसरे जो केवल बेसिक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया जाता है। मेरे इस हार्डवेयर में, बिकॉज इट इज माई कंपनी हार्डवेयर, सो इसमें मेरे पास लिमिटेशंस है। सॉरी, कंपनी का लैपटॉप है तो लिमिटेशंस है। नाउ जब मैं एक न्यू वीआई न्यू डिजाइन ओपन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर एनआई एलविस और एनआई पीएलडी दिख रहा है। ओके, और यहाँ एनआई एलविस डिजाइन दिख रहा है। अभी मेरे इस सिस्टम में हार्डवेयर और ड्राइवर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है। अगर मेरे सिस्टम में हार्डवेयर और ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल होते तो अगर मैं इसे क्लिक करके क्रिएट करूंगा तो मेरे इस मल्टी सिम में इस टाइप से एनआई माईडेक या एनआई एलविस प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं एक ईसीजी सर्किट ईसीजी का टेस्ट बेड डेवलप कर रहा हूं, तो ईसीजी सेंसर को मैंने इस एक एक्सटर्नल एलविस के ब्रेडबोर्ड, एक एनआई ELVIS 2 एनआई एलविस 2, जस्ट सेकंड। सपोज करते हैं कि मैं इस बोर्ड में, ये एनआई एलविस के इस बोर्ड में मैंने अपना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप किया हुआ है। ठीक है सर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप कर रहा हूं, और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डेवलपमेंट के टाइम पर मुझे मुझे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मुझे नहीं मिल रहा है, जिसे मुझे डेवलप करना है, या मुझे नहीं मिल रहा है, या जिसको मैं डेवलप करके रिसर्च करना चाहता हूं, तो उसको लॉजिकली, उसको स्पाइस कोड का यूज करके या लॉजिक बेस्ड पे यहाँ पर मैं डेवलप करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करके। और मैं ये जो मल्टी सिम है, सॉरी, जो ये जो एलविस है, इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। इसके एनालॉग से मैं इस सिस्टम के लिए इनपुट लूंगा, और इसके एनालॉग आउटपुट से इस सिस्टम को से आउटपुट दूंगा इस हार्डवेयर को, और मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के एक प्रॉपर टेस्ट बेड रेडी कर सकता हूँ। तो एनआई ने इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो उनकी सर्किट डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने रेडी किया है। एनआई का ये मल्टी सिम प्लेटफॉर्म LabVIEW के लिए डेफिनेटली ओपन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको LabVIEW से रिलेटेड कई सारे आपको टूल किट्स अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन ये सभी टूल किट्स जब आप इसको यूज करेंगे LabVIEW के साथ, ये इसका डेवलपमेंट LabVIEW से बनाया गया है, इसके बैकग्राउंड में LabVIEW का कोड चल रहा है। उसके लिए आपको मल्टीसिम को सिमुलेशन एंड LabVIEW को सिमुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। मल्टीसिम एंड LabVIEW को सिमुलेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर LabVIEW को सिमुलेशन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसका आपको यूज करना पड़ेगा LabVIEW को सिमुलेशन। इसके लिए आपके पास एक ही वर्जन का LabVIEW और एक ही वर्जन का मल्टीसिम होना चाहिए। वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम का, और ड्राइवर्स प्रॉपरली इंस्टॉल होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। Okay, sir. Next. आप इस प्लेटफॉर्म का यूज, आप जो हमारा ये जो एनआई मल्टीसिम है, इसका यूज आप फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों में बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में कर सकते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, नेटवर्क एनालिसिस लैब में, एंड आप इसका यूज कर सकते हैं सिग्नल कंडीशनिंग वाले जो सेटअप है वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं आपके सॉरी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और लाइका में आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं सर। अगर आप इसका ओल्डर वर्जन, अगर आप LabVIEW 14.1 डाउनलोड करते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, तो आप ओल्डर वर्जन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर लैब में भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। LabVIEW के न्यू वाले वर्जन 14.3 वर्जन में
8051 माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। LabVIEW के ओल्डर वर्जन 14.0 में 8051 माइक्रो कंट्रोलर भी अवेलेबल है। आप उसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने हाँ, लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 741, तो प्रेस हियर 741, प्लेस हियर 741, और इस 741 के लिए कम हियर टेक अ बेसिक। मैं यहाँ पर से एक बेसिक यूज करता हूँ, रजिस्टर्स 1K, और मैं 1K का एक रजिस्टर लेता हूँ और एक रजिस्टर और लेता हूँ 2। मैं अपने सर्किट को पहले डिजाइन करता हूँ। Now, come here, source, ground, AC power source. In place of this, मैं फंक्शन जनरेटर भी यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल W, मैं VCC लेता हूँ, ओके, VCC VDD basis, कंट्रोल W, ओके, VEE, कंट्रोल R, और मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। टेक ऑसिलोस्कोप हियर, मेक अ कनेक्शन। कंट्रोल W, टेक ग्राउंड, my identical to okay, so now here I am going to change the value, and value will 5K, and right click, come here, change the color segment of input channel. Now I all of you are very much aware about this all this circuit, so यहाँ पर मैं यहाँ पर जो मेरा आउटपुट होगा वो आउटपुट मुझे क्लैंप मिलेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, इन्वर्टिंग विथ क्लैंप। मेरा आउटपुट, नाउ यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग द आउटपुट इन्वर्टेड विथ क्लैंप, ओके, inverted with clamp. To remove that clamp, I can change the its 10, और लोअर वाले को, सॉरी, नॉट दिस वन, एंड VEE को मैं चेंज करता हूँ -3। सो लोअर पोर्शन ज्यादा क्लैंप मिलेगा और अपर पोर्शन में, नाउ यू कैन सी, बिकॉज क्योंकि लोअर में सैचुरेशन पॉइंट्स को क्रॉस कर जा रहा है, इसलिए वी आर गेटिंग द क्लैंप इन द लोअर सेक्शन। यू कैन इजिली सिमुलेट, डिजाइन एंड टीच योर स्टूडेंट। नाउ अगर मैं इस प्लेस में इसको चेंज करता हूँ विथ माई पोटेंशियोमीटर, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ पोटेंशियोमीटर का यूज करके,
तो अब देखते हैं कि बिहेवियर क्या होगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जैसे मैं इसको कम कर रहा हूं, इसकी सिग्नल, ओके, सॉरी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और जब मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, इसकी एम्पलीट्यूड कम हो रही है। इसकी आउटपुट, रेड वन इज माय आउटपुट। तो ये इन्वर्टिंग है, और ये आपके यूजर कंट्रोलेबल है। यूजर का कंट्रोल, ओके, आप यूजर इसको कंट्रोल कर सकता है कि उसे कितना एम्पलीफाई करना है विथ इन्वर्टिंग। Okay, Can you increase the saturation voltage over there? yeah, I can increase Yeah. minus 15. So I want to see like whether it is clipping the peak voltage or not. Minus and plus 15. Okay, sir. Now, if I want, so I can increase the voltage too. -22, द सिग्नल का जो फाइनल होगा, जो -22 वोल्ट ना, आउटपुट विल -22 वोल्ट, बिकॉज इन्वर्टिंग, तो 11 टाइम इंक्रीज होगा। Okay, now here I am going to remove this one signal, also going to delete this one. Here, press Ctrl W, come to the source, ground. Okay, now right click, come here, take AC power source once, AC power source 2, AC power source 3. फर्स्ट AC पावर सोर्स की वोल्टेज को मैं रखता हूं 2 वोल्ट, 100 हर्ट्ज। सेकंड 1 वोल्ट, 100 हर्ट्ज, सॉरी 1 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, and here 3 volts, 25 hertz, sorry 150 hertz. Okay, now I have these 3 signals with 3 different amplitude and with 3 different frequency. Take a basic, come into the resistance, take a normal resistance for 1 kilohertz, 1, 2 and 3. ओके, ठीक है सर। अब मैं सभी ग्राउंड को एक साथ ग्राउंड करता हूं। ग्राउंड, 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 इनपुट, 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 run. Okay, here I am getting the multi-tone kind of signal. इसका थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 1K, 500K, 100. Let's see, we are getting the multi-tone signal here.
Okay. Here I am going to keep the frequency amplitude 1, and amplitude 1, and run the program. Now you can see here we are getting the multitone sine wave kind of signal. Okay. अब अगर मैं एक फिल्टर बनाता हूं, अगर मैं इसके बाद एक फिल्टर डेवलप करता हूं और लगाता हूं, और फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को मैं उस टाइप से डेवलप करता हूं जो कि 100 हर्ट्ज के सिग्नल या 150 हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसफर करे, तो यहाँ पर से मैं एक फिल्टर भी क्रिएट कर सकता हूँ, लो पास फिल्टर यूजिंग IC 741. Let's try to create a filter. IC 741, Control C, Control V. Rohan. Control W. Nitish, Rohan is busy in installation. Okay, no issue. Inductors. Sorry, capacitor. Let's take a capacitor. Now I need one junction here, and I can make a connection from the junction to the line. Okay. I don't know my low pass filter will work or not, but let's try. नीलेश सर, कैन यू टेल मी मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर? ओके, नाउ यू कैन सी कि मेरा जो ब्लू एंड सिग्नल वो है वो थोड़ा ज्यादा ओके फिल्टर दिख रहा है. हेलो सर, मैम.
Okay, Supriya, hello. Yeah. Hmm. I think we need to stop the session. Yeah. Anyone is here? Yes,